for their right of good health and decent standard of living. By consistently engaging in various services and activities, the organization aspires to continuously elevate its impact and effectively accomplish its mission of creating a positive societal change. Now, the purpose of this online interactive session is to know why language matters. We also see how one can empower its career with effective communication. On behalf of the Aligarh Enhance, I, Fazil Imam, feel highly obliged and honored to welcome our esteemed guest, Janab Zulfikar Mohammadi Sahab. Bhai Zulfikar is a dedicated and knowledgeable English teacher with a profound academic background, holding an MPhil in English. Mr. Zulfikar brings a wealth of expertise to the realm of English education. His teaching repertoire spans a wide spectrum, encompasses English grammar, literature analysis, etymology, and the exploration of linguistic origins. Additionally, he is an adept instructor in spoken English, facilitating effective communication skills development. With an passion for language and a commitment to his students' growth, Zulfikar Mohammadi is a stalwart figure in the world of English education. Now, I would like to just briefly introduce the event flow of this session. Firstly, our speaker will share their valuable words within approximately 35 minutes and so forth. After about half an hour, the questions are put up by the participants over the speaker. About for 10 minutes, the question answer session rounds around. And finally, the vote of thanks will be given by the Aligarh Enhance member, Dr. Jibran Qadri sir. Now, I would like to invite our esteemed guest, Mr. Zulfikar Mohammadi, and also wishes him a very blessed happy birthday to Zulfikar Bhai. And I would like to now invite Zulfikar Bhai to share the session and share some valuable words. Over to Zulfikar Bhai. Thank you very much for inviting me here. First of all, let me know, am I audible to everyone? Yes, yes. And are you watching my face as well? My video is also visible? Yes. Is my video also visible? Actually, this software is new to me and I am also new to this software. That's why I'm unable to find whether I am visible or not. Zulfikar Bhai, you are visible and you are audible, or you are audible also. Okay, thank you very much. And I am unable to read the names as well. This surface is quite new to me, but believe me, I will learn soon. Okay, so as the introducer introduced me with very heavy words, actually there is nothing like that in reality. Whenever an anchor speaks about the speaker, so obviously he exaggerates things. I also exaggerate a lot of things when I invite someone to speak. So this happens, and I'm habituated towards that. But some words really, I don't think that I deserve for these types of titles and such as the etymology. So I'm just a student of etymology and I'm doing nothing in this. As far as the expertise is concerned, so I'm learning still. And yeah, all I can say is that I'm a good student. This is all, nothing more than that. As you have given me a topic, the effectiveness of language, of words in the context of the career. So yeah, the languages are not only one language, actually every language is effective, and not only in the sphere of career, but in your whole life. And as a religious person, after this world as well, the language is very useful.
Let us start from the very beginning of this world, when Hazrat Adam alayhi salatu was salam made a mistake, and he ate something that was forbidden, and he was sent down to earth. He realized his mistake and he prayed to Almighty God, please give me some words of atonement, some words of repentance. Allah Tabarak wa Ta'ala bestowed upon him the some words for atonement and some words for repentance. And Hazrat Adam alayhi salatu was salam's prayer was accepted, was answered, and then he feel relaxed. This evidence tell us something important about the importance of words. What is word actually? Language is the collection of the words. It's nothing more than that. It tells us the importance of words, that how much the words are important for us and how many words are important for us. If we do not know the words, we cannot express ourselves. We have seen from the example of Hazrat Adam alayhi salatu wasalam that he was unable to express his repentance and atonement. That's why he asked help. Allah Tabarak wa Ta'ala gave him help, and then he knows everything. So this is the first example of the effectiveness of the words. Not in the context of career, as I told you earlier. It is effective in sphere of everywhere, in life and after life as well. I don't know what should be the proper word for this akhirat, etc. Second thing is that if someone is not from the religious background, so another example of the words and its importance is that आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी जो आपको याद होंगी, जो ब्लॉकबस्टर्स हुई होंगी. कहानियां तो 12-13 के आसपास होती हैं. इससे ज्यादा कहानियां मूवीज वगैरह में होती नहीं हैं. बस 12 या 13 कहानियां होती हैं. लेकिन इनमें से कुछ फिल्में जो हैं वो ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं, कुछ फ्लॉप हो जाती हैं, कुछ डिजास्टर साबित होती हैं. इस सब की वजह ये होती है कि ज्यादातर जो ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं उनके सॉन्ग्स और उनके डायलॉग्स, आप मुगल आजम को देखिए, आप शोले को देखिए, आप शाहरुख खान साहब की DDLJ को देखिए, जित मोस्टली जो ब्लॉकबस्टर्स हैं, जो हिस्टोरिक ब्लॉकबस्टर्स हैं, उनका सबका एक ही सीन है, एंड दैट इज वेरी कॉमन कि उनके डायलॉग्स और उनके सॉन्ग्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वर्थ लिसनिंग आई से. अब ये गाने और ये डायलॉग्स, ये गीत, ये नगमे या गज़लें, ये सब क्या है? कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, nothing more than that. And what is language? Collection of words. इन दो एग्जाम्पल से पता चला कि करियर के मामले में वर्ड्स का कितना, लैंग्वेज का कितना इंपॉर्टेंस है. अगर आपको देर ना हो रही हो और अगर मैं आपको बोर ना कर रहा हूं तो मुझे एहसास कराइए, क्योंकि ये नया सरफेस है मेरे लिए. मैं स्काइप पे बड़ा कंफर्टेबल रहता हूं, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में बड़ा पुअर हूं, इस वजह से. तो मेरी आवाज़ सब तक पहुंच रही है? बहुत Yes, शुक्रिया, we can hear you. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. एक और एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा और उसके बाद कुछ और बातचीत. मेरा बच्चा जो है माशाल्लाह 10 साल का है, तो अगर उसकी कभी तबीयत ख़राब हो जाती है तो मुझे उसे शहर से दूर 15-20 किलोमीटर दूसरे शहर लेके जाना पड़ता है. वहाँ एक डॉक्टर मौजूद है, उस डॉक्टर के पास वो जाता है. यकीन मानिए, बिना दवा खाए उस डॉक्टर से सिर्फ मिलने के बाद मेरा बच्चा ठीक हो जाता है. आधे से ज़्यादा उसकी बीमारी अपने आप दूर हो जाती है, सिर्फ डॉक्टर साहब से बात करके. डॉक्टर साहब के पास ज़्यादा फुर्सत भी नहीं है, 2-3 मिनट देते हैं, हमारी लिहाज करके 5-6 मिनट बस. लेकिन बच्चा बिना दवा खाए भी जब वापस आता है तो उसकी कैफियत में बड़ा ज़बरदस्त सुधार होता है. वजह वजह जो मैंने नोट की है वो ये है कि डॉक्टर साहब उससे ये कहते हैं कि बेटा कुछ नहीं हो रहा है तुम्हें, तुम बहुत मजबूत हो, एवरीथिंग इज फाइन, बहुत छोटी सी बीमारी है, कोई परेशानी नहीं, घर जाओ, खेलते कूदते जाओ, ये एक गोली खाओगे ठीक हो जाओगे. जबकि दूसरे डॉक्टर्स जो मेरे शहर के हैं वो डरा देते हैं, अरे तुम्हारे तो स्पॉट हो रहे हैं, अरे ये तो ब्लड चेक कराना पड़ेगा, अरे ये तो अल्ट्रासाउंड की नौबत ना आ जाएगा. ये लोग डरा देते हैं. वर्ड्स आर पावरफुल. ये जो वर्ड्स होते हैं ये ड्राइवर्स होते हैं, ये हमें ड्राइव कर सकते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे सेंटिमेंट्स को, हमारे माइंड को, हमारे हार्ट को, रिलीजियसली स्पीकिंग.
हमारे हार्ट को। ये ड्राइव करते हैं, दे वर्क लाइक ए ड्राइवर। एक आदमी की किडनी फेल हो जाती है, उसे बहुत अच्छे डॉक्टर के पास लेके गए शहर में। किडनी फेल होना डायरेक्टली मौत होना नहीं होता है, आपको पता है डायलिसिस का सिस्टम वगैरह होता है। लेकिन डॉक्टर के पास से वो मरीज बाहर नहीं आता है, वहीं इंतकाल कर जाता है। वजह यह होती है कि डॉक्टर उससे कह देता है कि आपके पास अब ज्यादा वक्त नहीं है। मरीज वैसे ही हौसला छोड़ देता है, डिस्करेज हो जाता है, और हॉस्पिटल से बाहर भी नहीं आता, पहले ही इंतकाल हो जाता है। वर्ड्स आर पावरफुल। डॉक्टर बहुत अच्छा है, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा डॉक्टर है, लेकिन उसके पास लोग जाते नहीं है, क्योंकि वो वर्ड्स को सही तरह से इस्तेमाल नहीं करता है। मरीज से सीधा बोल देता है, उसे डरा देता है, एग्जेजरेट करता है उसकी बैड सिचुएशन को। मामलात बिगड़ जाते हैं, डिटीरियोरेट कर देता है उसकी सिचुएशन को। तो वर्ड्स आर पावरफुल। वर्ड्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, वर्क लाइक ए ड्राइवर। दे ड्राइव अवर इमोशन, सेंटिमेंट्स, हार्ट, माइंड, एवरीथिंग। अगर आप एक आदमी से बार बार कहे जाते हैं कि आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, कुछ दिनों बाद उसका माइंड मानने लगता है कि हाँ यार, मैं ऐसा ही हूं। तो ये तो रही वर्ड्स के इंपॉर्टेंस की बात। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ मैं। बस थोड़ी बहुत आड़ी टेढ़ी वीडियोस बना लेता हूँ, उन्हें अपलोड कर देता हूँ, आप जैसे लोग मोहब्बतों के साथ उसे देख लेते हैं। बस मेरा यही अचीवमेंट है कि मैंने मोहब्बतें हासिल की हैं। एक्सेप्ट दैट बाकी सब नॉर्मल है, मुझे लगता है कि कॉमन है, सिंपल है, एंड नथिंग स्पेशल टू बी टोल्ड नाउ। एज फार एज लैंग्वेज इज कंसर्न, सो अल्फाज से बड़ा फर्क पड़ता है। अगर अभी कोई मुझसे पूछने लगे कि फलां चीज़ कहाँ रखी है, और मैं कहूँ कि मुझे क्या पता कहाँ रखी है, तो आप लोग जैसा सुन रहे हैं तो आपको अंदाजा होगा कि मैं नाराज हूं उसके इस सवाल पूछने से। क्योंकि मैंने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता वो चीज़ कहाँ रखी है, मैंने कहा है मुझे क्या पता कहाँ रखी है। यहाँ मेरा सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा होना चाहिए। मैंने आपको अभी बताया था कि एक मरीज मैंने आपसे बताया था अभी, एक मरीज को डॉक्टर के पास लेके गए, ठीक होने की बजाय इंतकाल शुदा हालत में वापस आए। ये वाकया मेरा अपना है, वालिद साहब के साथ हुआ। क्या मैं इन्हें म्यूट कर सकता हूँ? ओके। तो वालिद साहब के साथ ऐसा ही हुआ था। वर्ड्स आर मोर पावरफुल। आप किस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ये ज़रूरी होता है। अब मैंने आपका काफ़ी वक्त ख़राब कर दिया, मेरे ख्याल से आप काफ़ी बोर हो रहे होंगे आफ्टर दिस लॉन्ग केकोलॉजी। लेट मी कम टू माय पॉइंट। जैसे कि आप लोग माशाल्लाह सभी प्रोफेशनल होंगे, तो इट इज़ अ मच नीडेड थिंग टू बी सेलेक्टिव अबाउट योर वर्ड्स, अबाउट योर एक्सप्रेशंस। गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होती हैं। अभी परसों ही मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि दिस इज लैटिट्यूड एंड दिस इज लॉन्जिट्यूड। कुछ लोग उसे लॉन्गिट्यूड भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए कि सर ब्रिटिश इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं, किताबों में ऐसा ही लिखा है। लेकिन मोस्टली लोग जो प्रोनाउंस करते हैं वो लॉन्जिट्यूड ही करते हैं। किताब कुछ और बताती है, गूगल कुछ और बताता है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ और होता है। तो जो चीज़ें मैं आपसे बता रहा हूँ वो मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन की हैं, मैंने खुद नोटिस किया है, कोई गूगल कॉपी पेस्ट नहीं है। जैसे आपको जब किसी से बात करनी होती है तो आप अपनी राय रखते हैं कि ये मेरी अपनी राय है, और मुझे लगता है मैं आपको बोर कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मुझे लगता है कि ये चीज़ ज़्यादा बेहतर काम करेगी। तो बहुत से लोग बोल देते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी। ये लफ्ज़ अकॉर्डिंग टू मी ये तब बोला जाता है जब हमें अपनी बात में एक तक़वियत पैदा करनी हो, एक मजबूती दिखानी हो, और ये अपने साथ इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे अगर आप उर्दू समझते हो तो तशरीफ लाना लफ्ज़ ये अपने लिए इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब अगर मैं यूं कहूं कि मैं तशरीफ ला रहा हूं, तो आप लोग हंसेंगे मेरी खराब उर्दू पे। आप कहेंगे कि यार साहब आपको उर्दू नहीं आती। तशरीफ लाना अपने लिए इस्तेमाल नहीं होता है, दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है। हिंदी भाषा में पधारिए जैसा शब्द दूसरे के लिए इस्तेमाल होता है, अपने लिए इस्तेमाल नहीं होता है। इन द सेम वे, अकॉर्डिंग टू किसी स्कॉलर का नाम लीजिए, किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम लीजिए, या कम से कम किसी दूसरे का नाम लीजिए, अकॉर्डिंग टू मी एक रॉन्ग एक्सप्रेशन है। ग्रामेटिकली दुरुस्त है, ग्रामर मना नहीं करती है, लेकिन इंसान का जो अपना सेंस है वो उसे ऑफ कोर्स मना करता है। ऑफिस में जाइए, किसी
कॉन्क्लेव में, किसी इंटरेक्शन में, और आप कहें कि अकॉर्डिंग टू मी ऐसा होना चाहिए, तो इससे कहीं ना कहीं एरोगेंस की, गरूर की बू आती है। या अगर किसी की इंग्लिश ठीक है तो वो समझ सकता है कि शायद इसे अभी एहसास नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अकॉर्डिंग टू मी एंड आई फॉर वन थिंक दैट। तो अगर आपको एक क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, आजजी और इनकसारी बरकरार रखनी है, और ये अनुसार या तकरीब के हिसाब से बोलना है कि मेरे मुताबिक ऐसा, और अगर आपको ऐसा बोलना है, तो इसके लिए इंग्लिश में एक एक्सप्रेशन होता है, आई फॉर वन थिंक दैट। ये बड़ा अच्छा एक्सप्रेशन होता है, और इसमें जो है इनकसारी और आजजी मौजूद होती है। अगर आप कहें तो मैं यहाँ चैट में टाइप कर देता हूँ, क्योंकि शेयर स्क्रीन वगैरह इसमें थोड़ा मुझे मुश्किल पड़ रहा है। आप जैसा कहें वैसा कर देता हूँ। आई फॉर वन थिंक दैट, अकॉर्डिंग टू मी की जगह पे आप यूज करेंगे। बाद में लिख के दे देता हूँ आपको। जैसे आपको किसी चीज के बारे में उम्मीद है कि फला इंसान आएगा या ऐसा हो जाएगा। आजकल यहाँ गर्मी बहुत है, तो मुझे उम्मीद है आज बारिश होगी। आई होप बारिश होगी। लेकिन अगर मुझे किसी ऐसी चीज की उम्मीद है जो नुकसानदेह है, जो डिलीटीरियस है, जो डैमेजिंग है, और मुझे थोड़ा सा खदशा है उसका, तो फिर उसके लिए आई होप ना कह के फिर आप कहते हैं आई एम एफ्रेड, मुझे डर है। मैंने अक्सर नौजवानों को देखा है, वो कहते हैं कि आई डू नॉट होप। ये डू नॉट होप चल तो जाता है, लेकिन इतना एक्सेप्टेबल नहीं होता है जितना आई एम एफ्रेड होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मुझे डर है, मतलब मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मुझे लग रहा है ऐसा, तो मैं कहूंगा आई एम एफ्रेड। इस तरह आगे फिर मैं अपना सेंटेंस कहूंगा, आई एम एफ्रेड। कहना हो कि मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा चांसेस हैं, तब आप कहेंगे आई एम एफ्रेड, और आगे बहुत ज्यादा चांसेस हैं, इस तरह से। तो आई होप का ऑपोजिट जो होता है वो आई डू नॉट होप ना हो के आई एम एफ्रेड होता है। मुझे शायद उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोग इन चीजों को जानते हो, क्वाइट पॉसिबल। जैसे आजकल एक चीज और है, और वो ये है कि मैं चूंकि सोशल मीडिया पर काम करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, तो हर तीसरा आदमी जो है कमेंट करता है, बोलता है रॉन्ग। ये रॉन्ग अगर कोई चीज है भी, तो अखलाकी तौर से किसी चीज को रॉन्ग एकदम, मतलब बिल्कुल बरजस्ता नहीं कहना कहना चाहिए कि पहली मुलाकात में ही आपने उससे रॉन्ग कह दिया, बिल्कुल फ्लैटली स्पीकिंग, रफली स्पीकिंग, रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। मतलब रॉन्ग कहना भी रॉन्ग है, गलत है। आपको कहना चाहिए, जी बीच में कॉमा लगाएंगे, मैं लिख दूंगा, बिल्कुल मैं लिख दूंगा अशरफ साहब। तो रॉन्ग की जगह पे हम कह सकते हैं इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। आई थिंक इट नीड्स इम्प्रूवमेंट। मुझे लगता है इसमें सुधार की गुंजाइश है। मुझे लगता है कि आपको इसमें दोबारा सोचना चाहिए। आई थिंक यू शुड रीथिंक अबाउट इट। यू शुड रीथिंक अबाउट इट। आपको इसके बारे में दोबारा सोचना चाहिए, ना कि डायरेक्ट रॉन्ग कह देना किसी को। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मालूमात नहीं होती है उस चीज़ की, शायद सामने वाले के पास हो। तो इसलिए अगर हम किसी को फ्लैटली स्पीकिंग रॉन्ग कह देते हैं, बाद में पता चलता है, तो बड़ी हजीमत उठानी पड़ती है। वी हैव टू सफर अ ग्रेट ह्यूमिलिएशन आफ्टर द रियलाइजिंग ऑफ आवर मिस्टेक। तो ये थोड़ा गलत हो जाता है, इसलिए ज़रूरी है कि रॉन्ग की जगह इट नीड्स इम्प्रूवमेंट, या यू शुड री थिंक अबाउट इट। आई मे बी रॉन्ग, मैं भी गलत हो सकता हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस का हमें यूज़ करना चाहिए। दैट विल बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कुछ और चीज़ें हैं मेरे पास, अगर आप बोर ना हो रहे हों। एम आई मेकिंग यू बोर्ड? सबसे कॉमन चीज़ जो मैंने नॉर्थ इंडियंस में देखी है, यहाँ मैं इंडियंस नहीं कह रहा हूँ, नॉर्थ इंडियंस कह रहा हूँ। जो साउथ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा इस तरह को यूज़ नहीं करते, इस तरह की चीज़ों को, जैसे नॉर्थ इंडिया हम लोग वाले करते हैं। बिकॉज बहुत लगाते हैं यार, बिकॉज बहुत लगाते हैं। स्पीकिंग कराता हूँ स्काइप वगैरह पे, ऐड नहीं कर रहा हूँ अपना। तो स्पोकन क्लासेस जो होती हैं, स्पीकिंग क्लासेस जो होती हैं, उनमें मैं स्टूडेंट्स को इसी बात पे टोकता हूँ कि यार आप लोग बिकॉज बहुत लगा रहे हो। कोई बिकॉज बोलता है, कोई बिकॉज बोलता है, कोई बिकाउज बोलता है। आप इसे कुछ भी कहिए, लेकिन इसे कहना कम कीजिए। अपना स्पीकिंग में आपके जो कॉन्वर्सेशन है, आपकी जो कम्युनिकेशन है किसी से, जो डायलॉग है, कुछ भी है, मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सवालों के जवाब दे रहे हैं,
उसमें बिकॉज का कम से कम इस्तेमाल कीजिए। अब ये मत सोचिए कि मैं किसी ग्रामर के हिसाब से बता रहा हूँ, या अब ये चल रहा है अब ये नहीं चल रहा है, नहीं, मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इसका लॉजिक देता हूँ। बिकॉज जो है ये तशरीह तलब लफ्ज है। जब आप बिकॉज लगा देते हैं, जब आप बिकॉज लगा देते हैं, तो सामने वाला एक उम्मीद से बैठता है कि आप अब उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे। आप उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे कि कैसे। मैं कहने लगूं कि आप 3 महीने में अंग्रेजी सीख सकते हैं, क्योंकि अब जैसे ही मैंने क्योंकि कहा तो आपको लगा कि अब मैं इसकी वजह बताऊंगा कि 3 महीने आपको क्यों लगेंगे। तो क्योंकि जो है वो आगे वजह बयान करता है। मान लीजिए मैं ही हूं और हर चीज की आपको वजह बयान करता चलूं, हर चीज की आपको वजह बयान करता चलूं। मैंने जब अपना स्पीच शुरू किया था तो मैंने शुरू किया था इफेक्टिव वर्ड्स से, कि वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। और अब मैं यहां तक आ चुका हूं कि हमें क्या यूज करना चाहिए और क्या नहीं। तो इसका मतलब हम लोग चल रहे हैं आगे। लेकिन अगर मैं बिकॉज लगा के आपको तशरीह करता रहता, मतलब उसकी व्याख्या करता रहता, उससे एक्सप्लेन करता रहता, तो आप लोग बोर हो चुके होते हैं। कुछ लोग तो शायद बदजन भी हो जाते और ये सोचते कि यार ये टीचर है या हमें बिल्कुल बेवकूफ समझ के काम कर रहा है, कि हर चीज का एक्सप्लेनेशन क्यों कर रहा है, क्यों हर चीज को साइटेशन में लेके जा रहा है, बार बार बिकॉज, बार बार बिकॉज, बार बार बिकॉज। अब नया बच्चा, चूंकि जो लैंग्वेज होती है इंग्लिश, उसमें जो बंदा सीखने वाला होता है उसे हमारे यहाँ बिजनौरी खास तौर पर नया बच्चा कह के बुलाते हैं। तो एक नया स्टूडेंट जो होता है जब वो बिकॉज लगाता है, तो उसे बिकॉज का काम तो पता होता नहीं है। ही डज नॉट नो द फंक्शनैलिटी ऑफ बिकॉज। लेकिन वो बार बार बिकॉज भरता रहता है अपने स्पीच में। तो होता यह है कि सामने वाला एक एक्सपेक्टेशन लेके बैठता है कि एक्सप्लेनेशन होगा, होता है नहीं। और अगर एक्सप्लेनेशन होता भी है तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी बुरा होता है। तो इसलिए बिकॉज के इस्तेमाल से बचें। ये एक फिलर हो गया है, असल में ये कंजंक्शन या कनेक्टर ना होके नॉर्थ इंडियंस में ये एक फिलर होके रह गया है। फिलर ऐसा होता है कि जैसे लोग बोलते हुए करते ये फिलर कहलाते हैं। तो ये एक फिलर होके रह गया है बिकॉज, अब इसके अलावा ये कुछ और नहीं है। इतनी क्लैरिटी हमें नहीं देनी चाहिए। चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो घर हो, चाहे वो कुछ भी हो। आप कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, आप किसी से कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, इतनी क्लैरिटी ना दीजिए कि आपका व्यूअर, आपका लिसनर, कुछ भी जो भी है आपका सुनने वाला, वो अपने आप को बेवकूफ ना समझे, वो आपसे बदजन हो जाएगा अगर आप बार बार बिकस कहेंगे। हो सकता है वो ये सोच ले कि इतनी क्लैरिटी किस लिए दे रहा है, मैं समझ रहा हूँ इतनी बात। ये चीज है। तो बिकॉज के इस्तेमाल से थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, एहतियात रखनी चाहिए। अनदर वर्ड इज इफ। जब हम किसी सेंटेंस में इफ लगा देते हैं तो मतलब होता है कि हम किसी चीज को इमेजिन कर रहे हैं। बिना इमेजिन किए भी बहुत सारी चीजें समझाई जा सकती हैं। मैंने आपको वर्ड्स के इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, किसी भी जगह इफ नहीं लगाया। 4 वाकये आपको सुनाए, 2 अपने थे, 2 किसी और के, लेकिन इफ किसी जगह नहीं लगाया। तो अगर आपको किसी चीज को सुनाना है, ये आपके हाथ में है। तो चाहे वो बात सच्ची हो या सच्ची ना हो, मैं लफ्ज झूठी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो बात सच्ची हो या सच्ची ना हो, लेकिन उसे इस तरह से एक्सप्लेन कीजिए कि सुनने वाला उसे सपोजिशन ना समझ के वो कुछ रियलाइज करे कि हाँ कुछ बात सुनाई जा रही है। अगर आप उससे पहले ही कह देंगे कि सपोज ऐसा, तो कुछ आदमी सपोज करते हैं और कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। मैंने आपसे कहा था मेरे पास साउंड प्रूफ कमरा नहीं है क्लास के लिए, क्योंकि फिर नेटवर्क्स वगैरह काम नहीं करते हैं। आई होप यू आर गेटिंग मी, यू आर गेटिंग मी। ओके। तो इफ का इस्तेमाल ना करें तो कैसे इस्तेमाल करें? अगर मुझे कहना हो कि अगर आप बुलाएंगे तो बिल्कुल मैं हाजिर हो जाऊंगा, मैं इसे यूं भी कह सकता हूं कि आप बुलाइए मैं हाजिर हो जाता हूँ। प्लीज कॉल मी, आई विल बी देयर। जैसे ये कहना हो किसी को नसीहत के तौर पे कि भाई अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपकी होगी, तो ऐसा कह सकते हैं ना कि वर्क हार्ड एंड एवरीथिंग इज योर्स। इसमें इफ लगाने की जरूरत कहाँ है? अगर तुम पूछो तो मैं बताऊं, प्लीज आस्क, आई विल टेल, नो इशू। तो अगर आप इफ लगा देते हैं तो आपके जहन पे एक बोझ पड़ जाता है, एंड दैट इज माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। तकरीबन 18 साल से पढ़ा रहा हूँ और ये अंदाजा है मेरा कि बंदा जिसका फ्लो न टूटता हो, उसे इफ के 4 सेंटेंस दे दीजिएगा, उसका फ्लो टूट जाएगा इंग्लिश में। क्योंकि इफ एक ऐसा कंजंक्शन है जो सेंटेंस के शुरू में लगता है, उसके बाद में या तो आदमी देन का इस्तेमाल करता है या रुक के इस्तेमाल होता है, लिखने में कॉमा लगा देते हैं,
बोलने में, या तो आप रुक जाते हैं या देन का इस्तेमाल कर देते हैं। तो दो चीजें इस्तेमाल करनी होती हैं। आपके जहन पे एक प्रेशर होता है कि आपने इफ लगा दिया है तो आगे के सेंटेंस को आपको पीछे वाले सेंटेंस से रिलेट करना है। ये बात आप नहीं जानते, आपका सबकॉन्शियस माइंड जानता है। इसलिए वो बौखला जाता है, उसे एक टास्क मिल जाता है और आपका फ्लो खत्म हो जाता है, या कम से कम उस पर कुछ ना कुछ असर तो पड़ता ही है, फर्क पड़ जाता है। उसके बाद एक और वर्ड है जिसे बट कहते हैं। ये बट वैसे बुरा नहीं है, इन सब की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। और मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो ये नहीं है कि भाई आज से बिकॉज का इस्तेमाल ही करना बंद कर दो। जैसे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, वो कहते हैं वेरी का इस्तेमाल अब मत करो। ऐसा कोई नया कानून नहीं है, ऑक्सफोर्ड ने, कैम्ब्रिज ने किसी डिक्शनरी में मना नहीं किया है कि वेरी यूज मत कीजिए। ये बिला वजह इंडियन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया इस पे वीडियोस, और इतनी बन गई कि अब लोग ये समझते हैं कि वेरी का इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए। वो 4-6 बार वेरी का इस्तेमाल करना मना है। सब वो तो विकस का भी है, वो तो सभी चीजों का है। तो बट का इस्तेमाल ऐसा है कि मैंने आपसे कहा कि हाँ मैं कल आऊंगा, और मैं कहूँ कि बट आपको खुद एहसास होगा कि मैं किसी मजबूत इरादे का आदमी नहीं हूँ। मतलब मैं फिकल माइंडेड हूँ, मैं फर्म डिटर्मिन्ड नहीं हूँ, क्योंकि मैं बार बार बट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। क्योंकि बट एक कंसेशन लेने के लिए होता है, एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि ऐसा नहीं है ऐसा। तो कोशिश कीजिए कि बट का इस्तेमाल कम हो। हालांकि बट शायद उतना बुरा नहीं है जितना बुरा बिकॉज है। इफ उतना बुरा भी नहीं है, इफ दूसरे नंबर पे बुरा है, बट तीसरे नंबर पे बुरा है। एंड फाइनली एक और वर्ड है जो हमारे नौजवान साथी बोलते हैं, एंड दिस इज एंड। ये क्या है कि जब हम इंग्लिश सीखते हैं, चूंकि ये हमारी सेकंड लैंग्वेज तो होती है, मदर लैंग्वेज, मदर टंग तो है ही नहीं किसी की आफ्टर ऑल, चाहे कोई भी हो उसमें। तो वो क्या करते हैं, फुल स्टॉप नहीं लेते हैं। और फुल स्टॉप न लेने की वजह से वो सेंटेंस को एंड 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 करके जोड़ते चले जाते हैं। आप कोई रस्सी ले लीजिए, और छोटी रस्सी ले लीजिए, फिर एक और छोटी रस्सी ले लीजिए, उसमें उसमें गांठ बांध लीजिए, फिर एक और गांठ बांध लीजिए, फिर एक और। आपकी रस्सी, आपका धागा बहुत बोझल हो जाएगा, खूबसूरत भी नहीं लगेगा, बुरा भी लगेगा, और किसी काम का भी तो बिल्कुल नहीं रहेगा। आप उस रस्सी पे एतबार नहीं कर पाएंगे कभी, उन गांठों की वजह से, क्योंकि आपको पता है ये जोड़ है। बिल्कुल इसी तरह लैंग्वेज है। आप अगर सेंटेंस रुक गए एक बोल के, और उसके बाद दूसरा बोला आपने, एंड लगा दिया, फुल स्टॉप नहीं लिया, तो सामने वाला भी सोचता है यार ये कब रुकेगा थोड़ी देर के लिए। तो एक पॉज हमें जरूर देना होता है अपनी लैंग्वेज में। वो पॉज जरूरी है। हिंदी में तो ये चल जाता है क्योंकि ये हमारी अपनी लैंग्वेज होती है, लेकिन इंग्लिश में एक पॉज बेहद जरूरी है। इसलिए एंड एंड तभी लगाया जाता है, जाहिर सी बात है, जब हमें फुल स्टॉप हटाना होता है। हाँ, कभी ऐसा हो कि मैं और अशरफ, तब तो एंड जरूरी है। मैं, अशरफ और कैफ, तब तो एंड जरूरी है। लेकिन ये है कि मैं वहां गया था और मैंने देखा एक लड़का जा रहा था, और मैंने उससे कहा, और उसने जवाब दिया, और मुझे वो जवाब अच्छा नहीं लगा, और मैंने उससे, तो फिर नागवार बहुत लगता है, और ये काफी ज्यादा बोरिंग हो जाता है। शायद उससे भी ज्यादा जितना ज्यादा आपको फिलहाल मैं बोर कर रहा हूँ। और एक चीज और है, वो है सो। इसमें मुझे माफ फरमाइएगा, ये मैंने फीमेल लोगों को ज्यादा देखा है बात करते हुए सो लगा के। बुराई कुछ नहीं है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड अकॉर्डिंग टू प्लेटो। जुबैर अहमद भाई, शुक्रिया। तो प्लेटो ने कहा था कि ज्यादती हर चीज की बुरी, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो एक्सेस ऑफ बिकॉज, एक्सेस ऑफ इफ, एक्सेस ऑफ एंड, बट, एंड फाइनली सो, बैड। इसे मत लगाइए, कम से कम यूज कीजिए। सो को बुनियादी तौर पे तो के लिए इस्तेमाल होता है। कुछ लोगों को मैंने हिंदी में भी तो की जगह सो लगाते देखा है। अहमद फराज साहब की एक बड़ी मशहूर गजल है, उसे जो अहले कुछ इस तरह देखते हैं सो उसके शहर में कुछ दिन, तो उन्होंने भी वहां तो की जगह सो लगाया है। तो ये लफ्ज सो जो है ये इंग्लिश से हिंदी तक में आ चुका है। ऐसा है, समझिए आप, हिंदी से इंग्लिश में नहीं गया है, ये इंग्लिश से ही हिंदी में उतर आया है। तो ये सो थोड़ा हल्का रखें तो बेहतर है, कम यूज करें, इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर लें तो ये बेहतर है। तो ये मेरे सजेशन थे आप लोगों के लिए। और एक सजेशन और, अगर आप लोगों को मैं बोर ना कर रहा हूं और आप लोगों को नागवार ना गुजर रही, आह, तो ये सजेशन मेरा है थोड़ा साउंड को लेके। साउंड का मामला ऐसा है कि
ये बड़ा इंग्लिश में सबसे ज्यादा जो डिफिकल्ट चीज है वो इसका साउंड है। ये जैसे लिखा जाता है ये वैसा पढ़ा नहीं जाता है। आप मेरी वीडियोस अगर देखते हो तो एक वीडियो में मैंने बताया था कि DEW ड्यू होता है, NEW न्यू होता है, लेकिन SEW सीयू नहीं होता है, सो होता है। तो इसमें ये मतलब बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है इंग्लिश की स्पेलिंग, इसके प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल भी प्रेडिक्टेबल नहीं होती है। आप अगर किसी वर्ड को नहीं पढ़ा है पहले तो यकीन मानिए आप उसे लिख नहीं सकते हैं, और आप उसे सही करके पढ़ने के भी कोई चांस है नहीं, वो पढ़ा जाए इत्तेफाक है, बहुत ही मुश्किल होता है। तो एक तो रहा ये कि इसका स्पेलिंग इसकी ऑर्थोग्राफी से करस्पॉन्डेंट नहीं है, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करता है, ये इसमें प्रॉब्लम है इंग्लिश में। एंड दिस इज नॉट द प्रॉब्लम ऑफ पर्टिकुलरली इंग्लिश, फ्रेंच वगैरह में, ये जिन लैंग्वेज से बनी है उनमें सब में ये प्रॉब्लम है। बात करें साउंड की तो वीडियोस इस कदर बन चुकी हैं साउंड पे, इसके प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट पे, और लोगों के अलग अलग व्यूज हैं इस बारे में कि एक आम आदमी उलझ के रह जाता है। एक साहब कहते हैं कि आप अपना इंडियननेस बरकरार रखिए, एक साहब कहते हैं कि नहीं बोलना है तो फिर अंग्रेजों की तरह बोलिए। आपको जब पहले वाले की वीडियो देखते हैं तो आपको पहले वाले के लॉजिक्स बढ़िया लगते हैं कि यार सही तो कह रहा है, हमारा इंडियननेस बरकरार रहना चाहिए। फिर आप अगले दिन दूसरे बंदे की वीडियो देखते हैं, वो कहता है कि नहीं, देखिए हिंदी कौन सी बढ़िया, अंग्रेजों की तरह से बोलने की या हिंदुस्तानियों की तरह से। आपको इस बार ये लॉजिक अच्छा लगने लगता है। कुल मिला के आप परेशान हो जाते हैं कि यार कौन सा। तो एक सीधी सी बात मैं आपको राय दूं कि इंडियननेस तो आपका और मेरा बरकरार रहना ही है। चाहे हम अपना साउंड TH वाला फे निकालने लगे, या अदर निकालने लगे, या देन निकालने लगे, तो चाहे मैं देन को देन कहने लगूं, या थिंक को थिंक कहने लगूं अंग्रेजों की तरह, लेकिन मेरा इसमें इंडियननेस हमेशा बरकरार रहेगा। आई थिंक दैट। अब मैंने यहाँ TH जो है वो अंग्रेजों की तरह साउंड करने की कोशिश की है, लेकिन मेरा इंडियननेस बरकरार है। बायोलॉजिकली, ज्योग्राफिकली, जो सा भी इली आप लगाना चाहें लगाइए, हूं तो मैं इंडियन ही आफ्टर ऑल। मैं अपना बिजनौरीपन तक हाइड नहीं कर सकता बोलने में, तो इंडियननेस तो कैसे हाइड होगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आपका साउंड एक्यूरेट भी ना हो तो कम से कम नियर नेटिव तो हो, नियर नेटिव हो। क्योंकि जब हम नियर नेटिव की कोशिश करेंगे या नेटिव की कोशिश करेंगे तब जाके ये नियर नेटिव होगा। मतलब यूं समझिए कि अगर आप 100% की कोशिश करोगे तब जाके ये 60 या 70% होगा। जैसे कोई अंग्रेज जब हिंदी बोलता है तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है कि मैंने देखा था, हम उसकी मजाक उड़ाते हैं कि ये कैसे बोल रहा है, ऐसे ही अंग्रेज हमारी मजाक उड़ाएगा, हंसेगा कि हम कैसी इंग्लिश बोल रहे हैं। इसलिए बेहतर है कि जब आधा काम कर लिया है, हमने बोलना सीख लिया है, तो फिर थोड़ा सा और बाकी है उससे भी कर लिया जाए। और साउंड के लिए सबसे बेहतर होता है कि आप दो तरह की डिक्शनरीज फॉलो करें। अब तो चूंकि सब डिजिटल हो गया है तो हर वर्ड को आप प्रोनाउंस के बटन पे क्लिक करके उसका प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। दो डिक्शनरीज इसमें आपकी बहुत मदद करेंगी। एक का नाम तो आपने बिल्कुल बेशक सुना ही होगा, दिस इज ऑक्सफोर्ड, एंड सेकंड डिक्शनरी इज मैरियम वेबस्टर। दिस इज द ओल्डेस्ट डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन इंग्लिश, एंड दिस द मोस्ट रिलायबल एज वेल। तो मैरियम वेबस्टर आप सुने वो अमेरिकन साउंड देगी, ऑक्सफोर्ड सुने वो ब्रिटिश साउंड देगी। वो जो गूगल पे आता है ट्रांसलेशन, वो प्रोनाउंसिएशन वगैरह, वो मुझे माफ फरमाइए इतना रिलायबल नहीं होता है। मैंने कहा इतना रिलायबल नहीं होता है, रिलायबल तो होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं कहीं हो जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप मैरियम वेबस्टर का साउंड फॉलो करें या ऑक्सफोर्ड का साउंड फॉलो करें, दिस विल बी बेटर फॉर यू आई थिंक। तो ये रहा साउंड का मैटर। एज फार एज एक साउंड मैं आपको जरूर बताऊंगा जो TH का साउंड है, इसको बोलते हैं TH का सॉफ्ट साउंड। TH के दो साउंड होते हैं, जिसे एक को तो हम दा का साउंड कहते हैं, जैसे अदर, जैसे फादर, जैसे मदर। ये भी एक्चुअली दा का साउंड नहीं होता है, लेकिन अब मोस्टली लोग इसे दा की आवाज में ही निकालने लगे हैं। तो इस वाले साउंड को हम छोड़ देते हैं, इसे हार्ड साउंड बोलते हैं TH का। ये जो सॉफ्ट साउंड है, जो आता है थिंक में, और जो आता है थिंकिंग में, थॉट में, थ्रू में, इसमें जो आता है थैंक में, जो इसमें आता है ये थे वाला साउंड, तो ये थे नहीं होता। ये उर्दू में अलिफ बा ता और उसके बाद जो तीन नुक्ते वाली से आती है उसका साउंड होता है फा। जीभ यहाँ ऊपर वाले दांतों के पीछे रखना पड़ता है, तब फै बोलते हैं मुंह से, थे बोलिए या सै बोलिए तो साउंड क्लियर निकलता है फा। ऐसे बोलना पड़ता है, आई थिंक, थैंक यू वेरी मच,
आई थिंक, आई थॉट, ऐसे बोला जाता है। तो इस साउंड की थोड़ी सी अगर आप कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। इसके अलावा बेटर इंग्लिश तो मेरी राय में वही है जिसमें साउंड भी अच्छा हो और आदमी का अपना इंटोनेशन बहुत अहम होता है। अगर आपका साउंड हिंदी में क्लियर नहीं है, उर्दू में क्लियर नहीं है, तो फिर मैं शर्तिया कह सकता हूँ कि इंग्लिश में भी क्लियर नहीं होगा। इसलिए हिंदी उर्दू को छोड़ के इंग्लिश के पीछे भागना मेरे ख्याल से ज़्यादा लॉजिकल नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा फायदा नहीं उठा पा रहे हैं लैंग्वेज से, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए कम से कम दो लैंग्वेज का होना शर्त है। अगर आपके पास दो लैंग्वेज हैं तो आपके पास कंपैरिजन का मौका होता है। और अगर आपके पास लेके भी और देके भी एक ही लैंग्वेज होती है तो ऑफ कोर्स आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा क्या रूल है, क्या नहीं है, क्या सेंस है। इडियोमेटिक यूज बहुत ज़रूरी होता है सेंटेंसेस का। नहीं, इडियम से वो मतलब नहीं है जो आप समझ रहे होंगे, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, नहीं नहीं। इडियम का मतलब होता है कि किसी बात को इडियोमेटिकली या फिगरेटिवली कहना। जैसे कोई आपसे कहे कि यार मेरी तो कमर टूट गई, आज शेयर मार्केट की वजह से मेरी कमर टूट गई। यहाँ पे ये कमर टूटना जो है ना, ये इडियोमेटिकली इस्तेमाल किया है आपने, लिटरली इस्तेमाल नहीं किया है। कमर टूट जाना मतलब फाइनेंशियली बहुत नुकसान हो जाना या सामाजिक तौर पे नुकसान हो जाए, कमर टूट जाना। इसी तरह ये कहना तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी है, ये भी इडियोमेटिक यूज है। तो ये इडियोमेटिकली यूज आप तभी समझ पाओगे, तभी कर पाओगे जब आपके पास कम से कम दो लैंग्वेज हो। तो ये बेहतर होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन बस इसे ही कहते हैं। एक आखिरी चीज और होती है जो बिल्कुल पर्सनली आपसे शेयर करूंगा, और वो ये है कि जब कभी आपको बोलने का मौका मिले तो उसमें पर्सनल चीजें बहुत कम लगाइएगा। कभी आपको माइक पे बोलने का मौका मिले तो अपनी बात तभी कीजिएगा जब वहाँ रिलेवेंट हो, जब वहाँ आपकी बात का रेलेवेंस हो। वैसे एग्जाम्पल भी देना हो तो किसी और का दीजिए, दैट विल बी बेटर। तो बस ये था मेरी तरफ से, दिस इज माय टेक्नोलॉजी। अब आप अगर कुछ मुझसे पूछना चाहें और अगर मुझे पता होगा तो मैं कोशिश करूंगा, नहीं पता होगा तो भाई आई एम सॉरी, नथिंग, मैं खुद अभी सीख रहा हूँ। बताइएगा, कोई सवाल आपका हो। मैं पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो जुल्फकार भाई से सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने वीडियो के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं, अपने को अनम्यूट करके भी सवाल पूछ सकते हैं, और टेक्स्ट में लिख के भी सवाल पूछ सकते हैं। ओवर टू द ये पार्टिसिपेंट्स। इसमें आपका नाम नहीं आ रहा एंकर साहब, मैं माफी चाहूंगा। मेरा नाम फजल है, फजल। अच्छा फजल भाई, बहुत अच्छा बोलते हैं माशाल्लाह आप। ज्यादा बोर तो नहीं किया मैंने? बहुत बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन था। ये तो अच्छा मेरे हाथ पार्टिसिपेंट्स नहीं और ये अच्छे चीजें। तरीके से बताएंगे आपको। जी, मैं भी लिख के भेज देता हूँ ये चीजें, आपको मैसेज कर देता हूँ। हाँ ये अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खैरियत से होंगे आप? माशाल्लाह जी बड़ा प्यारा अल्हम्दुलिल्लाह। सेशन था, बहुत ही प्यारा। और बहुत सारी चीजें जो मतलब मैंने भी नहीं सीखी अब तक, काफी सारी चीजें मैंने सीख ली इतने कम वक्त में। और लाइक जैसे आपने बोला कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये मुझे भी फील है, क्योंकि जो आपकी एक जुबान है वो आप कहीं भी कैद कर सकती है, आपको अच्छे में बिल्कुल भी बिल्कुल। बुरे में भी। लाइक जी। कहते हैं ना, पावर ऑफ वर्ड्स बेटर देन सॉर्ड। हाँ तो ऑफ कोर्स। कभी कत्ल करना हो तो जुबान काफी है आपकी। अरे 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 अरे। कहते हैं ना कि तो ये चीजें हैं। लेकिन आपने जो उसके साथ इंग्लिश के बारे में जो चीजें करी, बिकॉज आई एम लिविंग इन बुडापेस्ट, आई एम लिविंग इन यूरोप फ्रॉम हम्म। फॉर लास्ट ईयर, ठीक है। हम्म। तो जो आप बता रहे थे कि जो हमारी इंडियन है वो हम छुपा नहीं पाते हैं, जैसे कि मैं भी हम्म। बोलता हूँ आई, लाइक इंडियंस हम लोग अलग तरीके से बोलते हैं अपने में। और हम यहाँ हम्म। इनसे जब डिस्कस करते हैं तो हम एक्सेंट चेंज करने की कोशिश करते हैं। हम्म। और वो छुपता नहीं है, उनको भी पता है कि हम लाइक वी आर ट्राइंग टू डू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल या बिल्कुल। ये है। लेकिन मुझे ये लगता है कभी कभी लाइक जो इंडियन इंग्लिश है हमारी, वो ब्रिटिशर्स तो है, हम लोग फॉलो करते हैं हम्म। पॉजिटिवली उसको, क्योंकि हमको पढ़ाई जाती है, ग्रामर भी जी हम लोग काफी यूज जी जी। करते हैं। लेकिन इनकी नजर में हम लोग जब भी पता नहीं क्यों वो मतलब एक अलग तरीके से लेते हैं हमें, लाइक अ ह्यूमिलेशन फॉर्म, कि इंडियन इंग्लिश बहुत ही अलग है। ये मुझे समझ में नहीं आया अब तक। हाँ दरअसल वक्त की थोड़ी किल्लत है, वरना ये जो सीन है असल में ये लिंग्विस्टिक शॉविनिज्म का सीन नहीं है असल में। हम्म। ये रेशियल शॉविनिज्म का सीन है। ओके। ये जो एंगल कॉम वहां पे मौजूद है, इसके अंदर रेशियल शॉविनिज्म पहले से मौजूद है। माई यस। गॉड इज बेटर देन योर गॉड वाला सीन है। यस। या मेरा खुदा तुम्हारे खुदा, मतलब मेरी हर चीज तुम्हारी चीज से बेहतर है। बिल्कुल। तो दिस हम्म। इज द केस ऑफ रेशियल शॉविनिज्म।
और फिर ये भी था कि यहाँ से ह्यूमिलिएट होके जाना पड़ा था। आफ्टर ऑल 200 हम्म। साल की हुकूमत थी, छोड़ के जाना पड़ा था। तो वो जख्म अभी कहीं ना कहीं तो ताज़ा हो मुझे गए। ये भी लगता है कहीं ना कहीं इनकी जो थॉट है वो कार्सिनेशन से भरे हुए हैं, लाइक बस अपना अपना और अपना। ऑफ कोर्स आई एक टोल्ड लाइक यू, सम अप विद माय गॉड इज यही है, बेटर देन वही वाली चीज है। योर्स। तो और तो वैसे देखा जाए हम लोग काफी अच्छी चीजों में मतलब हैं, बहुत यहाँ इंडियंस हैं जो काफी अच्छे हैं, लेकिन हाँ इन चीजों में थोड़ा अजीब लगा हमेशा। और दूसरा आजकल जो स्लैंग का जो आपको पता होगा, यू आर लाइक अ टीचर, जी वेरी गुड। या जो स्लैंग का आजकल जो कमाल है उसमें आप समझ नहीं सकते। जी लाइक जी माई जी बैड, या मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम आल्सो लर्निंग दैट। जी। यहाँ पर रहते रहते मुझे भी आदत हो गई है, माई बैड, कम अगेन, लाइक स्लैंग्स के टीसीपी बारे में कुछ कम, कहा नहीं जा सकता है, वो किताब में नहीं होते हैं। लाइक या हिट द हाँ सैक, लाइक आई एम गोइंग टू स्लीप, हिट द सैक, या जी, लाइक हिट द हिट सैक मी अप। वगैरह ये मतलब स्लैंग कभी भी स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। जी जी जी। तो मुझे ये समझ ये में नहीं आता, लाइक इनफॉर्मली आप। होता है। और ये हम्म। यहाँ पे हमारे यहाँ इंडिया में पता भी न चलता अगर वीडियो क्रिएटर्स ना होते तो। यस यस। ये सीन। वैसे आपकी आवाज बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। और जिस डिवाइस से आप कर रहे हैं, कोई माइक वगैरह ले रखा है आपने? नथिंग, आई एम इन अ रूम, जस्ट कुछ नहीं, आई अरे एम इन अ रूम। कमाल, बहुत अच्छी आवाज है माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। नाम नहीं आ शुक्रिया। पा रहा है इसमें आपका। मेरा नाम इमरान खान है, और इमरान खान। लाइक अ फेमस वन हाँ फॉर अच्छा, अ लास्ट जुल्फ़िकार ईयर, मोहम्मद। एवरीबॉडी नोज दैट, या। ओके। कोई और सवाल पूछना चाहें तो पूछिए सर, मैं बिल्कुल अगर इस सर लायक मैं हूँ। आपका व्हाट्सएप नंबर लेना चाहूंगा, बिकॉज आई विल नॉट डिस्टर्ब यू अगेन एंड अगेन, बट समटाइम्स या लाइक हाँ आई हैव अ बिल्कुल, क्वेश्चन। बिल्कुल थैंक मैं यू सो मच फॉर। लेकर अभी आइए ना, काम करिए थोड़ा सा, जाइए दोनों बहनें। अभी दे देता हूँ, कोई इशू नहीं। ओके, जी ठीक है, शुक्रिया आपका, बस जी, मैं ये बस इतना ही गुड टाइम था। मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज ना भेजें तो मैं आपको व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूँ सर। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होगा, लाइक आई विल नॉट डू अ सिली क्वेश्चंस। ये मेरा व्हाट्सएप शुक्रिया। है। मैं एलएलबी के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं जानता। कौन सा बुक अच्छा Competitive रहेगा, इंग्लिश का? exam. नहीं नहीं, मुझे नहीं पता उसके बारे में, मैं लिटरेचर का आदमी हूँ बस। तो एलएलबी का इंग्लिश जो होगा वो आपका सिलेबस के हिसाब से होगा जो भी होगा। हेलो जी सर, जब हम बात करते हैं तो हमारे गले से जो साउंड निकलता है उसके बारे में आप कुछ इम्प्रूवमेंट बता सकते हैं? जैसे थोड़ी सी तफसील बताइए सर, मैं समझ जाऊंगा। साउंड निकले तो इट शोज दैट आप मैच्योर बात कर रहे हैं, इससे बहुत फर्क पड़ता है। अच्छा, जी। तो मुझे मेरे डॉक्टर साहब ने जो बताया था वो तो ये है कि आप फ्रिज के पानी का इस्तेमाल ना करें, कुछ दिनों में बेहतर हो जाएगा। और बस ऐसी दो चार चीज़ें, ठंडी कोल्ड ड्रिंक वगैरह ना पिए तो क्लैरिटी आ जाती है आवाज़ में। मुझे पता नहीं ये मेरा नेचुरल है या मतलब वो गर्म पानी पीने से होता है, तो ऐसा है सर। बहरहाल ये बायोलॉजिकल इशू है। हेलो। यस सर। हाँ, तो ये बायोलॉजिकल इशू है, किसी डॉक्टर से मिलिए, शायद ये काम बन जाएगा आपका। जी, इम्पॉसिबल नहीं। थैंक यू। हाँ सदाकत भाई, मेरे बारे में जानने के लिए कुछ नहीं है यार, मैं बस एक इंग्लिश का टीचर हूँ पीछे, बस और कुछ नहीं। एक फैमिली है छोटी सी, किरतपुर बिजनौर में रहता हूँ, एक स्कूल में पढ़ाता हूँ रोजी रोटी के सिलसिले में, और बस और कुछ नहीं, नथिंग मोर देन दैट। जी अस्सलाम वालेकुम जुल्फकार भाई, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। जी ऑफ कोर्स सर, बिल्कुल स्वागत सर। वालेकुम सलाम। जी, जुल्फकार भाई, जैसे कि अभी एक स्टूडेंट ने अभी बोला, जो कि बुदापेस्ट में है। जी बेसिकली मैं दो तरह से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। जी पहली चीज तो ये कि जो फसाहत और बलागत की बात कही जा रही है किसी एक लैंग्वेज के दूसरे लैंग्वेज के ट्रांसफॉर्मेशन में, जी जिस तरह से हम किसी अंग्रेज से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टा बोल दे, जी ठीक है। ऑफ कोर्स। तो आपकी बेसिकली ये मुस्लिम्स के साथ थोड़ा सा एडवांटेज है कि वो अरबी जैसी फसी लैंग्वेज को जानते हैं, तो हाँ इसलिए वो किसी भी लैंग्वेज को, या या वो फ्रेंच के साथ एडवांटेज है कि वो ऐसा बोल सकते हैं, ठीक। जी बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई लैंग्वेज इतनी वसी है अभी, जो इतनी डेवलप हो गई है कि जिसमें मतलब एक्सेंट मैटर करता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें, टॉफल या आइल्स जो एग्जाम होते हैं इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, हम्म वहाँ एक्सेंट पे इतने नंबर नहीं जा रहे, लोग नॉन ओवी स्कोर कर रहे हैं, जबकि दे साउंड लाइक इंडियन। हम्म सो मैं बेसिकली यही कहना चाहूंगा कि लोगों से कि एक्सेंट पे इतने परेशान ना हो,
और बाकी जुल्फिकार भाई तो हैं ही सिखाने के लिए। और दूसरी चीज ये भी है कि यूरोप के अंदर, यूरोप में तो खुद अगर 27 यूरोपियन मुल्क देखे हैं अगर, तो 27 में से मेरे ख्याल से 5 भी ऐसे नहीं है जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। और अब चाहे हंगरी हो या स्पेन हो या पुर्तगाल हो, वो हाउ कैन यू जज यू बिकॉज देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज नॉट इंग्लिश, and even they are not able to communicate properly in English. So I don't think so they are racist in this way, but I believe is that they are, you know, proud of their culture and language as well. जहाँ तक मुझे पता है हंगेरियन लैंग्वेज के बारे में, तो दुनिया की एक इकलौती एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें शायद बात भी अगर होती है तो शायरी मिजाज में होती है, मतलब हर चीज हम काफी है, हम लजीज में होती है, समझ रहे हैं? तो हाँ, रियली रियली मैंने पढ़ा इस बारे में थोड़ा सा पहले काफी, लेकिन मैं आपके आपके थ्रू मैसेज देना चाहूंगा लोगों के, मतलब ठीक है, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, डोंट बी वेरी मच फैसिनेटेड अबाउट इंग्लिश, है ना? और कोई भी चीज प्रैक्टिस से आ जाती है। असल में जिब्रान कादरी भाई, एक चीज आपने सुनी होगी, और वो ये कि जब कोई चीज शुरू होती है तो फिर वो वहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, फिर वो आगे बढ़ती चली जाती है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी जी जी, मैं सुन पा रहा हाँ, हूँ आपको। जैसा आपने कहा ये बात बिल्कुल मैं इस बात से अग्री करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मैं स्टूडेंट से और आम लेक्चर्स में यही कहता हूँ कि एक्सेंट जो है ना वो रखिए अपना अंग्रेजों वाला, क्योंकि अगर आप 100 पर ट्राई करोगे तब जाके 60-70 हो गए। अभी आप इंडिया के वो इलाके देखिए जो वॉज को बाज कहते हैं। अगर इस चीज के इस तरह की चीजें उन लोगों के सामने आ जाएं कि नहीं मैटर नहीं करता है, तो ये लोग कभी वॉज तक कहने की नौबत, वाज तक नहीं कहेंगे, ये बाज ही कहते रहेंगे। और ये शायद आप भी मानेंगे कि बाज कहने वाला आइएल्ट्स तो क्वालिफाई कर नहीं पाएगा, क्योंकि नहीं, मेजॉरिटी डेफिनेटली इंडिया नहीं में, कर पाएगा, लेकिन मेजॉरिटी, सोच मैं भी नहीं बता रहा सकता, हूँ आपसे, मैं लेकिन खुद मतलब रूरल एरिया से हूँ, तो यहाँ पे बाज बर भेयर भाई भाट, ये टीचर्स के एक्सेंट है, ये टीचर्स के एक्सेंट है। हम्म जो सीबीएसई आईसीएसई में पढ़ा रहे हैं वो भेयर भाई बहन भाट, दिस टाइप ऑफ एक्सेंट। तो इसलिए सुधार करने के लिए हमें बोलना पड़ता है, वरना आपकी बात से मैं बिल्कुल पूरी तरह से मुकम्मल तौर पे मैं इस बात से सहमत हूँ, आई अग्री, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि नहीं कहेंगे तो ये नहीं नहीं भेड़ भाई बिल्कुल भाट लेके पूरे दुनिया में, नहीं नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम सर, ये है वो वजह। वो जैसे कि मेरा नाम जिब्रान है, कोई जिब्रान कहेगा तो बुरा जी लगेगा, वो जी, सही बेहतर ये ये होगा कि होता है। जिब्रान ही बोला जाए। जी जी, अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं भूल गया पूछना आपसे, जो जी, ओपिनियन था बिल्कुल आपका, सर, बिल्कुल बिल्कुल। वर्ड्सवर्थ के गालिब, जी, वर्ड्सवर्थ के गालिब क्या चूज करेंगे आप? क्यों? विलियम वर्ड्सवर्थ, जी द ग्रेट प्रीस्ट ऑफ नेचर। हाँ, वर्ड्सवर्थ जो था वो उसके अंदर रेवोल्यूशनरी उसके इरादे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन में शरीक हुआ एसटी कॉलरिज के साथ, अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, लोगों पे बहुत जल्दी विश्वास कर लिया करता था। और फ्रेंच रेवोल्यूशन वालों ने उसके साथ कहा कि तुम हमारा साथ दो तो ठीक है, हम तुम्हारी प्रकृति वगैरह बचाएंगे। बाद में फ्रेंच में क्रांति हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो भी प्रकृति के उतने बड़े दुश्मन साबित हुए जितने पुराने वाले थे। तब से विलियम वर्ड्सवर्थ का बेचारे का दिल विल टूट गया, और फिर वो बस द ग्रेट प्रीस्ट ऑफ नेचर इन शॉर्ट। बाकी नहीं, क्रिश्चियन मौलवियों ने तो एज उसे जो कहा वो पोइट्री कहा। आप मतलब किसे कहेंगे, मतलब गालिब को चूज करेंगे या? हाँ, ऑफ कोर्स, गालिब जैसा तो नहीं कह सकूंगा, लेकिन हाँ इतना है कि गालिब से कम भी कहना शायद गलती है। हम पल्ला तो अच्छा बिल्कुल कहेंगे आप, इसमें तो कोई शक नहीं। अच्छा। हाँ, विलियम वर्ड्सवर्थ कमाल की शायरी की है, उनकी नेचर ये सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बस गालिब का स्टाइल जरा अलग है। लेकिन एक सवाल और मैं आपसे पूछूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन अगर हाँ, आप अगर जवाब मुझे देना पता चाहें, ये हुआ आउट तो। ऑफ स्कोप है, आउट ऑफ सिलेबस, जी। आउट ऑफ सिलेबस है। जैसे कि फैज को अक्स कहा जाता है अल्लामा का, ऐसे ही फराज को अक्स कहा जाता है गालिब का मॉडर्न डेज में। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये आप मानते हैं इस बात में कि फराज ने वेस्टर्न वर्ल्ड पोएट्री को कहते हैं रिप्राइज किया है? असल में जो बात आप जानना चाह रहे हैं उसमें मैं इसलिए कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मुझे उर्दू शायरी
पे ज्यादा उबूर नहीं है। उबूर तो मुझे इंग्लिश पे भी नहीं है, अच्छा। लेकिन उर्दू के मामले में मैं ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। मतलब मुझे शेर व शायरी अच्छी लगती है, मैं उसे समझ लेता हूँ। अच्छा। उसमें जिद्दत तबाई और जाने क्या क्या, रुजत तबाई, ये चीजें मेरी समझ में नहीं आती कि मतलब ये क्या चीजें हैं। तो आपके सवाल का ये जवाब मैं दे नहीं पाऊंगा, और गोल जवाब मैं देना नहीं चाहता, वेग आंसर, ठीक ठीक ठीक। क्योंकि ये उर्दू से रिलेटेड भी है, चलिए इंग्लिश से भी, तो मुझे पता नहीं इस बारे में। नहीं नहीं, फिर तो बेहतर है हाँ, आप मैंने जवाब पढ़ा ना। बहुत है फराज को, लेकिन मैं शायरी के बारे में ज्यादा पेच खम उसके समझता नहीं। अच्छा। उर्दू शायरी के ज्यादा पेच खम नहीं समझता, बस याद हो जाती है, लोगों में सुना देता हूँ। लोग समझते हैं मैं बड़ा काबिल आदमी हूँ, लोग समझते हैं ये सीन है। अच्छा। गलत फहमी नहीं है। नहीं, आप काबिल, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं नहीं, काबिल। ये उर्दू के मामले में कुछ नहीं है ऐसा। और कोई नो सवाल वन इज तो परफेक्ट पूछिए इन एनी किसी सेंस। और साहब का। जाबिर जिब्रान भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे। सर एक क्वेश्चन पूछना था। जी तेजवीर भाई, स्वागत है आपका। जी तेजवीर जी भाई। जी। सर जैसे हम कोई भी जैसे आंसर राइटिंग वगैरह करते हैं इंग्लिश में, जी। तो मतलब सर जैसे हम लिख रहे हैं चीजों को तो मतलब आता भी है लेकिन फिर वर्ड्स कम पड़ जाते हैं, मतलब कि हाँ। क्या लिखें इससे आगे, मतलब पता है कि लिखना है और हम्म। ये भी पता है कि क्या लिखना है, हम्म। लेकिन लैक ऑफ वर्ड्स कह सकते हैं। हाँ मतलब। जैसे अब जैसे मैंने क्वेश्चन देखा तो मैं कहूंगा कि अरे इस पे तो मैं कम से कम नहीं तो 5 पेज भर दूंगा। हम्म। अब जब लिखने बैठेंगे तो वही 1 1.5 पेज में, उसके बाद आप हम्म। समझ रहे हैं मैं। मैं समझ गया आपकी बात तेजवीर भाई। एक्सपेक्टेशन इज मोर ब्यूटीफुल देन रियलिटी। जी उम्मीदें जो होती है ना, वो वास्तविकता से बहुत बड़ी दूर होती होती है। है, इसलिए जब बिल्कुल। सच्चाई सामने आती है तो ऐसा ही लगता है। मतलब अगर कोई आपसे कहने लगे कि जुल्फिकार मोहम्मदी के बारे में कुछ लिखो, तो आपके लिए 3 लाइनें बहुत हो जाएं। जी जी तो 3 लाइनें बहुत है मेरे बारे में। अब आप उसमें और क्या लिखोगे? मैं आदमी 3 लाइन का हूं, तो आप मेरे बारे में 3 ही लाइन लिखोगे। बिल्कुल इसी तरह से अगर कोई सवाल है कि भारत कब आजाद हुआ, तो इसका जवाब सिर्फ एक ही लाइन में लिखना होगा, और वो ये है कि 1947 को। अब जी अगर मेरी तबीयत चाह रही है कि मैं और लंबा लिखूं, तो जाहिर सी बात है ये लफ्जों के साथ एक खेल होगा, एक सौदागरी होगी लफ्जों की। लेकिन असल मतलब तो सिर्फ एक ही लाइन से पूरा हो जाएगा, 1947 में आजाद हुआ। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो नहीं, सवाल क्या है जिसका आप दरअसल जवाब लिख रहे जी हैं, या वो दरअसल चीज क्या है जिस पे आप जवाब लिख रहे हैं। मसलन आप हिंदुस्तान की ग्रेटनेस पे, उसकी अजमत पे, उसकी तारीख पे, उसकी कल्चर पे, उसकी सभ्यता पे, अगर आप इंडिया की सभ्यता पे लिख रहे हैं, उसके कल्चर पे लिख रहे हैं, तो यकीनन फिर आपको 10 पन्ने भी कम होने चाहिए। जी जी दरअसल बात यह है कि मैं जी। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। अच्छा, बढ़िया बात है। तो जी, तो उसके लिए मैं थोड़ा मतलब इसलिए आइडिया चाह रहा था कि मतलब थोड़ा ज्यादा लिखना है वहाँ, आंसर राइटिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा क्या करूँ, कुछ टिप्स देखिए, अगर मेरे आप। पास जो जुगाड़बाजियां हैं वो पता नहीं कि यूपीएससी में काम करेंगी या नहीं। मैं चूंकि लैंग्वेज का आदमी हूं, तो मैं आपको एक बात 3 या 2 तरह से कहना तो सिखा सकता हूँ। जैसे मैं यूं कह सकता हूं कि मैं तेजवीर शर्मा से मिला, वो बहुत अच्छा आदमी है, लड़का है। तो मैं कहूंगा यस्टरडे आई मेट तेजवीर शर्मा, ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब इसे बिल्कुल। मैं यूं भी कह सकता हूं कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, और मैं इसे यूं भी कह सकता हूं यस्टरडे आई मेट अ वेरी गुड बॉय हुज नेम वाज तेजवीर शर्मा। अब ये सेंटेंस आपका लंबा हो गया दोबारा। जी तो इस तरह से थोड़ा सा बढ़ा तो सकते हो आप अगर चाहो तो। मतलब हम्म, आपकी जो चीज 1200 वर्ड में होगी, वो इस तरह से अगर आप करें, सेंटेंस को लंबा करके सिंपल सेंटेंस यूज ना करें, कॉम्प्लेक्स लगाएं, कंपाउंड लगाएं, यूज ही ना करें सिंपल सेंटेंस, तो 1200 की जगह अब 1800 या 1500 वर्ड हो जाएंगे आप। अब जी ये मैं कह नहीं सकता कि वो जो उस कॉपी को एग्जामाइन करेंगे वो इसे क्या कहेंगे, ये चीज। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक और कोई सवाल भाई, बिल्कुल पूछ लीजिएगा। फोन चला रहा हो तुम, तो पैसे मिल जाएंगे इससे, जा रहे हैं इसके चक्कर में मत पड़ियो। कैन आई म्यूट हिम? श्योर श्योर। एनी मोर क्वेश्चन फ्रॉम एनीवन एल्स? जुल्फिकार भाई, मेरा भी एक सवाल है, किसी और को कोशिश। पूछ सकता है वो?
कोशिश करूंगा सर, पता हुआ तो बता दूंगा, ना पता हुआ तो कोई बात नहीं। जी। नहीं सर, आपको हेलो। मालूम है, मुझे लगता है आप बहुत अच्छे से बताएंगे। जी बताइए। पूछ लीजिए, किसी इमरान भाई आप पूछ लें। हेलो। जी हाँ इरफान फजल, आप भाई। पूछ लीजिए, मैं बाद में पूछ लूंगा। आई एम वेटिंग। हाँ अस्सलाम वालेकुम। हाँ हेलो, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, मुझे एक सवाल पूछना है। जो इससे पहले सवाल था उसका उल्टा सवाल है मेरा। जी मेरे साथ एक अच्छी बात ये है कि मैं बहुत लिख सकता हूँ। कि कोई अगर टॉपिक दे दिया जाए तो उस पर, ये मुझे मतलब आदत है, मैं शुरू से लिख सकता हूँ। ठीक है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं अक्सर बहुत ही सादा जबान और आसान अल्फाज में लिखता हूँ। तो ये ठीक है या मुझे कुछ अच्छे अल्फाज अपने बढ़ाने चाहिए? हम्म ये इस बात पर डिपेंड करता है इरफान भाई कि आपके पढ़ने वाले कौन हैं, समझ रहे हैं ना। हेलो। जी जी सर। हाँ, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर आपकी ऑडियंस ठीक ठाक है, जो लफ्ज़ वाकई में अच्छे समझ सकती है, बोल सकती है, तो फिर कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स का इस्तेमाल जो है वो लाजमी हो जाता है आपके लिए। और स्टैंडर्ड वर्ड्स का मतलब क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन तो है नहीं, अलावा इसके कि जो मानी खेज अल्फाज होते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे रेलेवेंस वर्ड है इंग्लिश में, तो अगर आप कहीं रेलेवेंस यूज करते हैं तो लोगों को लगता है कि आपने एक सही लफ्ज यूज किया है। बस इसी तरह की चीजें होती हैं। तो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड तो कोई वर्ड होता नहीं है। आम फहम लफ्ज है तो बहुत अच्छी बात है, थोड़ा मुश्किल लफ्ज है तो लोग उसे दूसरे एंगल में लेते हैं। जैसे फ्रांसिस बेकन बहुत ब्रीफ लिखा करते थे इंग्लिश एसेज, बड़े अदक अल्फाज इस्तेमाल हो जाते थे उसमें। तो ब्रीफ भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, टोटली डिपेंड्स ऑन योर ऑडियंस, इट डिपेंड्स ऑन योर रीडर्स। छोटे बच्चों के लिए लिख रहे हैं, आम फहम लोगों के लिए लिख रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है, आम फहम चीज़ तो सबसे अच्छी है, नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन बीच में एक आध वर्ड लगाते रहिए ताकि लोगों को लगे कि आपसे कुछ मुश्किल वर्ड्स भी आते हैं। शो ऑफ करना भी कभी कभी ज़रूरी होता है। और पूछ लीजिए कुछ जो पूछना हो। हाँ एजाजुल सर। हक, यस आई वॉज योर टीचर एंड आई नॉट वॉज योर टीचर, आई एम स्टिल योर टीचर यार। और कोई सवाल हो तो पूछ लीजिएगा। जी जुल्फिकार भाई, मेरा एक सवाल है कि 4 या 5 ऐसी चीजें जो एक इंसान करे अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के, प्रोफेशनली। ये इस बात पे डिपेंड करता है फजल भाई कि आप कौन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। इंग्लिश की। मैं इंग्लिश की ही बात करूँ। हाँ, तो इंग्लिश में अगर आप अपने आप को इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो सबसे पहला काम तो ये है कि यूट्यूब वीडियोस बंद करनी पड़ेंगी थोड़ी सी देखनी। हर उस आदमी की वीडियोस न देखी जाए जिसके पास सब्सक्राइबर्स हो। ये पैमाना नहीं होता है इंसान का, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें ना हो, चीजें जो हों वो रिलायबल हों। मतलब अगर आप रिलायबल लोगों को फॉलो करोगे तो चीज़ें रिलायबल आती रहेंगी आपके पास। जैसे डॉक्टर शशि थरूर हैं, उनकी वीडियोस आप कंटिन्यूअसली देखोगे तो उनका जो इंटोनेशन है, उनका जो बोलने का स्टाइल है, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि पढ़ना, आप पढ़ते कितना है। नए वर्ड्स जो आएंगे वो पढ़ने से आएंगे। एक एक जो ओरल स्पीच होती है, मतलब स्पीच ओरल ही होती है, तो जो एक आम आदमी बोलता है जो कभी स्कूल ना गया हो, वो भाषा बोलता है जो बिल्कुल भी लिखित नहीं होती, वो वाली भाषा बोलता है। तो अगर आपकी भाषा में थोड़े से लिखित वाले शब्द आ जाते हैं, रिटर्न शब्द आ जाते हैं, तो फिर आपकी लैंग्वेज इफेक्टिव हो जाती है। एंड फाइनली, कौन इंग्लिश के मामले में तो एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। अगर आपका ये अच्छा है देन एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि रिलायबल स्पीकर्स को सुनिए, उससे एक्सेंट प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होता है, वर्ड्स अच्छे होते हैं, और रीडिंग। और बस ये 3 चीजें काफी है मेरे ख्याल से। ये 3 चीजें बिल्कुल मदद करेंगी आपकी, और 4-6 महीने में ठीक हो जाएगा।
अगर एक सेटिस्फाइड और ना हो मेरा तो। जी जी, मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। एक और मेरा सवाल है कि जी। किसी को बर्थडे विश जो कैसे करें, क्योंकि आज एक हमारे अलीगढ़ नाज के मेंबर का भी बर्थडे है, डॉक्टर अच्छा। जिब्रान कादरी साहब का। तो मैं सबसे पहले तो उन्हें बर्थडे विश करना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि विश यू मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। और सर हाँ। आपकी ब्लेसिंग्स भी चाहिए उनके लिए, प्लीज सर। अच्छा, तो मैं तो यही कहूंगा कि भाई रस्म दुनिया है जो बस यूं ही अदा होती है, वरना सूरज की कहाँ सालगिरह होती है। तो मिरियड्स ऑफ हैप्पी बहुत रिटर्न्स बहुत ऑफ द शुक्रिया। डे। तो बस दरअसल कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, जैसे हैप्पी बर्थडे। इसमें आप थोड़ा बहुत ही चेंज कर सकते हैं। जैसे हैप्पी दिवाली, तो इसमें अगर आप चेंज करेंगे तो कहाँ तक चेंज करेंगे? तो इनमें बस आप मैनी की जगह आप मीरियड्स कर सकते हैं। मीरियड का लिटरली मीनिंग 10,000 होता था किसी जमाने में, आज उसका मतलब अनेक होने लगा है। तो मीरियड्स लगा सकते हैं मैनी की जगह, मीरियड्स ऑफ हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अच्छा, नया लगेगा। एक और वर्ड होता है गूगल, आपने सुना होगा शायद। एक के आगे अगर आप 100 जीरो लगा दें तो वो गिनती गूगल कहलाती है। उसी की स्पेलिंग बिगड़ के गूगल हो गया था आपका। तो गूगल भी लगा सकते हो इधर। ऑलराइट, किसी और का कोई सवाल? हेलो जी। जी। सर, एक क्वेश्चन और था सर जी तेजवीर कि भाई, बिल्कुल। सर जैसे हम कोई न्यू इंग्लिश का जैसे कोई नोवेल वगैरह लाए या कोई भी बुक लेके आए, जी। तो सर 2 या 4 दिन तो सर उसका एक एक्साइटमेंट बना रहता है। हाँ। सर उसके बाद मतलब कि फिर तो ये है कि कहाँ रखा है, मतलब उसका उसके बारे में जो एक्साइटमेंट पहले या 4 दिन रहा है, तो सर उसको रेगुलर करने के लिए क्या करें, कोई भी बुक हो। इसको कहते हैं अटेंशन स्पैन। अटेंशन स्पैन आजकल लोगों का छोटा ही होता जा रहा है। अब कोई भी बंदा इंतजार नहीं करता है। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। 15 सेकंड की वीडियो, ना कि 15 मिनट की वीडियो। तो ये सब चीजें हैं। अब इसे बढ़ाने के लिए क्या करें? तो मुझे लगता है कि ये शायद कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है और हमारे लाइफस्टाइल पे भी डिपेंड करता है कि हमारा अटेंशन स्पैन छोटा है। आप मुझे कोई ऐसी किताब दे दीजिए जो साइंटिफिक, मतलब साईफाई हो, साइंटिफिक फिक्शन हो, साइंस फिक्शन पे हो, तो मैं शायद ही उसका एक दो पन्ना पढूं। लेकिन अगर आप मुझे कोई ऐसी किताब दे दें जो लैंग्वेज से मुताल्लिक हो या एजुकेशन सिस्टम पे हो, तो मैं शायद ही उस दिन कुछ और काम करूं। ये हमारे सब लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है तेजवीर भाई। आपको सारा दिन कुछ और काम है, आप यूपीएससी कर रहे हैं, तो कहाँ दिल करेगा किताब पढ़ने को? मैं सारा दिन क्लासेस में रहता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, तो मेरी तबीयत नहीं चाहती फिर किताब पढ़ने को, क्योंकि थक जाता हूँ आफ्टर ऑल। अब मैं जब फ्री होता हूँ तो पढ़ लेता हूँ। तो ये कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से, ये लाइफ नहीं स्टाइल है। नहीं सर, वो ठीक है, मतलब आप जैसे हमें एनसीईआरटीज वगैरह पढ़नी होती हैं, हम्म। तो मतलब हमारा क्या एक आपने वो बात सही कही लाइफ स्टाइल वाली, कि हम लोग बस वीडियो देखना पसंद कर रहे हैं। मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनली, जी जी जी। वीडियो में हम उसको देख लेंगे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जी हम उस चीज को बुक से पढ़ने में थोड़ा कतरा रहे हैं। तो ये पूछना चाह रहा हूँ सर मैं भाई कि देखिए, इसके लिए तो इमेजिनेशन ऑफ फ्यूचर एक अच्छी चीज है। कि जब कभी आपका दिल जो है अपने काम से हटे, तो अपने फ्यूचर को इमेजिन कीजिए कि मुझे ये करना है, मैं ऐसा बन जाऊंगा। मेरा जब कभी दिल नहीं करता स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए, अभी की बात बता रहा हूँ, तो मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ कि यार ये 25,000 की जो सैलरी है ये मिलेगी नहीं। तो फिर मेरा दिल करने लगता है जाने के लिए, मैं जाने लगता हूँ। सिंपल। ऐसा ही आप इमेजिन कर लीजिए। ये मेरा पर्सनल है, शायद आप पे काम करे, शायद ना करे। ऐसे ही आप इमेजिन कर लीजिए कि अगर मैंने ये किताब पढ़ ली तो ऐसा ऐसा हो जाएगा, ना पढ़ी तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। शायद काम करे आप पे। मगर है ये पूरी तरह पर्सनल प्रॉब्लम, ये कोई सोशल प्रॉब्लम नहीं है, इंडिविजुअल केस है। उमरा खालिद ने पूछा है कि हमें किन यूट्यूबर्स को सुनना चाहिए। तो ये जो सवाल है किन यूट्यूबर्स को सुनना चाहिए, मैं ऐड तो बिल्कुल नहीं करूंगा कि उसे सुने और उसे ना सुने। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। मतलब ऑनलाइन मैं बैठा हूँ, ऑनलाइन जिब्रान बैठे हैं, ऑनलाइन तेजवीर बैठे हैं, और हमारी पहले से सेटिंग हो गई है कि तेजवीर तुम ये कहना, और जिब्रान आप ये कहना, और मैं ये कहूंगा, और ये शाहनवाज ये कहेंगे, और शहनशाह ये कहेंगे, और उमरा खालिद ये कहेंगी, और वैभव सतीश ये कहेंगे। वैसे उसमें दो ही लोग होते हैं। तो इस तरह की वीडियोस बिल्कुल ना देखें।
उन लोगों की वीडियोस ना देखें जो आपको सिर्फ टिप्स देते हो बात करने के। 3 टिप्स आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, 4 टिप्स आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे, 10 टिप्स, 1 टिप आप फ्लुएंट इंग्लिश। इस वीडियो को कतई ना देखें, चाहे वो मेरी हो। ये वीडियोस जो हैं ये जहर है। कोई आपको कैन का इस्तेमाल सिखा रहा है, ये इतना बुरा नहीं है, देख लीजिएगा। कोई आपको कोई वर्ड, कोई एक्सप्रेशन, कुछ चीज सिखा रहा है तो सीखने वाली चीज सीख लीजिए। लेकिन ये टिप्स बाजी के चक्कर वाली जो वीडियोस हैं, ये सब व्यूज लेने के लिए होती हैं और कुछ नहीं होती। मैंने लाखों वीडियो देख ली जो टिप्स देते थे कि यूट्यूब पर व्यूज कैसे पाएं। मैंने उन लोगों को लाखों व्यूज दे दिए, मेरी खुद किसी वीडियो पर लाखों व्यू नहीं आए एक जमाने तक। आज भी कुछ खास नहीं है, 30-35 हजार सब्सक्राइबर्स हैं उधर। हाँ, फेसबुक पे ठीक ठाक है। उधर मैंने किसी का कोई वीडियो नहीं देखा कि व्यूज कैसे नहीं, वो अपने आप आ गए। बिल्कुल इसी तरह ये टिप्स वाली वीडियोस ना देखें, बाकी किसी को भी देखें जो आपको सिखा रहा है वो सीख लीजिए। कोई वर्ड बता रहा है नया, बिल्कुल देख लीजिए। एक्सप्रेशन है, किसी चीज की ग्रामर है, प्रेपोजिशन है, कुछ भी, ये देख लीजिए। लेकिन ये टिप्स वाली चीजें छोड़ दीजिए, जब तक कि वो कम से कम शशि थरूर जैसे आदमी की ना हो। तब तक किसी की टिप्स मत लीजिए, मेरी भी मत लीजिए, किसी की भी, कोई भी हो जाए। तो ये क्राइटेरिया हो सकता है। हाँ हाँ, टीईडी टॉक का ठीक रहेगा अगर आप सुने वो। तो टीईडी टॉक तो भाई जबरदस्त चीज है अपने आप में। अब और कोई सवाल हो तो बताइए, इट्स गेटिंग लेट, मुझे सुबह मजदूरी के लिए भी निकलना होगा। तो इसका वाइंड अप करते हैं अपने सेशन को हाँ जरा। बिल्कुल, और कोई गलती हो गई हो फजल भाई तो मैं सब सेशन बहुत अच्छा गया। माजरत खा टाइम से हूँ। ज्यादा चला, जाहिर सी बात है, इसलिए इस चीज को जताता है कि सेशन काफी अच्छा गया है। अच्छा, ये अशहर वरना कोई खान थे रुकता कोई? नहीं के लिए अभी। जी हाँ, जी जी। कोई और किसी का कोई सवाल हो, 1 आध मिनट? सर मेरा ही एक सवाल था जो मेरे दिमाग में चल रहा है, जी काफी हुआ है उन लोगों को। जी तो जी जी। मैं अपना मेरी स्कूलिंग जो हुई है वो कॉन्वेंट से रही, लेकिन मैंने 8th तक इंग्लिश मुझे आती थी, आई कैन अंडरस्टैंड बट आई कांट स्पीक। हाँ तो ठीक उसके है। बाद मेरे मतलब मुझे सीखने का थोड़ा जज्बा उठा। तो एक जैसे इन्होंने बोला कि काफी बच्चे बोले थे कि वीडियोस हम देखते हैं, तो मुझे लगता है किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। आज हमने लाइब्रेरीज बंद करके और यूट्यूब्स वगैरह चैनल ज्यादा आजकल, हम्म। उसकी वजह से हम चीजें नहीं समझ पाते। और जो इमोशंस होता है ना किताब पढ़ने का, या वो जो फ्लो आता है, वो चीजें नहीं लिख सकते आप, क्योंकि जो जुबान है वो आपकी कैची होनी चाहिए। मतलब आप बोलते बिल्कुल बहुत बिल्कुल। अच्छा, ठीक है सर, क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ, आई गो थ्रू लॉट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट, आई एम लिविंग विद इंटरनेशनल स्टूडेंट, और मेरी जो क्लास वगैरह होती है वो भी इंटरनेशनल के साथ है। तो मुझे यूरोपियन इतने नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो अलग, वो जी जी हैवी जी, लैंग्वेज है, मैं समझ रहा हंगेरियन हूँ। मैंने पढ़ी है एज ए पार्ट टाइम। जी। तो जो चीजें हैं वो मुझे लगती हैं कि आप कुछ चीजों को ग्रैब करने की कोशिश करें, वो इतना आसान नहीं है। मैंने 9 से शुरू करा और बैचलर पूरा मेरा चला गया। और मैंने हम्म। उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने पोएम्स लिखी हैं, और आई गो थ्रू अवॉर्डेड हम्म, सो मेनी टाइम्स। तो मुझे लगता है कि जितना आप खूबसूरत बना सकते हैं अपने, बी अ बेस्ट वर्जन ऑफ योर्स। मतलब ये चीजों बिल्कुल में ना बिल्कुल। रहे कि ये नहीं करेंगे तो ये नहीं होगा। आप अपनी वोकैब को भी चेंज करें। हो सकता है आपने 2 वर्ड याद करें, इसका तीसरा भी याद कर सकते हैं, तो वो ऑफ भी आपके कोर्स। लिए खूबसूरत रहेगा। और एक बुक आती है वर्क बुक, जिस पे मैंने काम किया। वर्क बुक में बहुत सारी चीजें होती हैं, पैसेज होगा उसमें, और बहुत सारे आपके पिक्चर ग्राफिंग, जैसे पिक्चर जो राइटिंग होती है, जो इमेजनरी हम्म। आप लिखते हैं, वो कितनी खूबसूरत चीज है। वो आपको थॉटफुल बनाती है कि आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यही मेरा था। और कुछ मुझे एडवाइस देना चाहें, यू अडोर माय वॉइस एंड आफ्टर दैट कुछ अरे नहीं, एवरीथिंग इज फाइन, आपने जो बताया बहुत अच्छा है। और ये बात बहुत ठीक है आपकी कि वीडियोस के पीछे हमारे यहाँ एक दीवानगी है, जबकि किताबों को हमने छोड़ दिया है। किताब पढ़ना थोड़ा सेहत के लिए भी बेहतर है, और मैंने वीडियोस बैचलर देखना तक वैसे भी ग्रामर बुक नुकसान पकड़ी थी। जी। ग्रामर बुक पकड़ी थी 9 से लेके, मेरी ग्रामर टीचर ने दी थी, व्रेन एंड मार्टिन की रेड कलर की बुक आती है। हाँ, वही काफी उसमें इंग्लिश की बहुत सारी सबसे चीजें अच्छी हैं। और मुस्तनद किताब है। जी अभी जी। मेरे पीछे देखेंगे, यहाँ पे रखी है। अच्छा अच्छा हाँ, वो मेरे पास पीछे आज तक रखी है। है। वही इंग्लिश की सबसे अच्छी किताब है ग्रामर की। और उसकी दूसरी अगर कॉन्ट्रेरी लेनी है तो जेसी नसफील्ड की ले सकते हैं। ये जो कॉलिंस की डिक्शनरी आती है, कि जेसी नसफील्ड, यस। हम्म जेम्स कॉलिन नसफील्ड, तो एक हम्म ग्रामर की किताब इनकी है। तो ये 2 ही वर्जन है इंग्लिश ग्रामर के, वो बड़े अच्छे। हम्म। यहाँ जो फॉलो की जाती है इंडिया में, ये पीसी रेनो क्रोमाटिन वाली फॉलो होती है। और कोई सवाल हो भाई किसी का तो पूछ लीजिए। शुक्रिया कंपाइल बहुत बहुत। करते हैं सेशन को। Success is not an accident, it's an achievement, and you must be prepared for it.
Now, I would like to invite Mr. Jibran Qadri, who worked as a project lead in Sustainable Territorial Geothics, which is EU project in US-Italy collaboration. I would like to invite Jibran Qadri Sahab to have a vote of thanks to all of us. Please, sir, over to you. फजल, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। फजल, आपका हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह जो वे ऑफ इंटरेक्शन है अमंग द गेस्ट और पार्टिसिपेंट्स के बीच वाकई वो काबिल तारीफ है, और वक्त के साथ वो हर सेशन बाय सेशन निखरता जा रहा है और इस प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह एक से एक जीनियस आ रहा है और अपना व्यू शेयर कर रहा है। और असफर ने जो बेसिकली मशाल जलाई थी, मुझे लगता है कि शायद अब उसमें तपिश शुरू हुई है और चीज़ें बढ़ना शुरू हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो जितने पार्टिसिपेंट्स देखे मैंने और जो एक्टिवनेस है और ईगरनेस है लोगों के बीच में, मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं जिस मकसद के तहत हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो कामयाब हो रहा है। फिर सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं जुल्फ़िकार साहब का, जिन्होंने अपना बेशकीमती वक्त निकाला और अलीगढ़ नेसा जैसे प्लेटफॉर्म को इज्जत नवाजी और उसके पार्टिसिपेंट्स को अपनी नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि काफ़ी काबिल तारीफ है। और इवन मुझे भी आज बहुत कुछ सीखने को मिला जुल्फ़िकार भाई से, और इंशाल्लाह मैं चाहूँगा कि वो फ्रीक्वेंट गेस्ट बन जाएं हमारे और अक्सर बेशतर आते रहें हमारे साथ, और इस तरह से ही लोगों को रोशनास करते रहें अपने नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद नॉलेज के बाद एक्सपीरियंस ही सबसे ज़्यादा पावरफुल टूल है जिससे लर्निंग फेज को और जल्दी इम्प्रूव किया जा सकता है। और लास्टली मैं तमाम पार्टिसिपेंट को थैंक्स बोलना चाहूँगा जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और जिस तरह से क्वेश्चन पूछे, रियली अमेजिंग। आई होप कि वो अपने इस लर्निंग फेज को कंटिन्यू रखेंगे, और मैं चाहूँगा जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सबसे पहले उनको बेस्ट विशेस और गुड लक। असफर, लास्टली थैंक यू इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आई होप कि ये कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में। शुक्रिया, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। All right. Your contribution, whether big or small, have made a significant impact. We look forward to your contribution and support and participation in future endeavor. Thank you very much. The session may dismiss. You can leave now. Okay, good night, everybody. Thank you, Zulfikar night. bhai. At your service, Fazal bhai. बहुत शुक्रिया. Thank you. Good night, Thank you sir. very much. शुक्रिया।